Today we provide an update on the ongoing sit-in camp at the National Press Club in Islamabad. This marks the 48th day of our movement, and we are gathered here with over 500 affected families, students and media supporters from various regions. We extend our gratitude to the citizens of Islamabad for their unexpected yet invaluable support as we face a counter sit-in aimed at undermining the mental well-being of the affected families. We emphasizes the urgent need for psychological counseling for those in the camp. As the affected people of Balochistan currently protesting across the region, we collectively endure suffering, especially the families in this camp. The state machinery appears to be manipulating our situation, starting with their plans to arrest all participants. When our march headed towards Islamabad, they collected our data, including fingerprints, during our entry into the capital. Students like Zahir Baloch, a PhD scholar at Comsets University, Islamabad, and 34 other Baloch students faced delays in information dissemination to their families after completing the profiling process. This highlights the lawlessness in Islamabad, where the courts seem complicit in supporting these actions. Numerous FIRs, including sedition charges, have been filed against the Baloch nation in different areas, including DG Khan and Taunsa. Human rights members and journalists covering our stories are being threatened and beaten, facing social media trolls. Manzoor Pashtun, attempting to support the sit-in camp, remains detained. The military intelligence agencies, courts, and political parties seem involved in orchestrating these events and sabotaging the Baloch Yekjehati Committee's camp, depicting the story of a colonial Balochistan. We have witnessed their action in the mass graves of Khuzdar and the dumping of our loved ones' bodies, displaying a blatant disregard for human lives. These have been done through the death squad supporting the overall state machinery. We, the Baloch people, are facing these inhuman professional killers known as death squads. I am now concerned for the people of Islamabad. They can do anything to sabotage our march against Baloch, genocide, and even compromise the security of the camp of the citizens of Islamabad. We know this is very concerning. Those living in Balochistan know how the counter camp of death squad is very concerning, supported by the so-called mass political party. Some political parties are trying to build a religious version of this, and another party sitting in the counter camp is supporting, threatening, and operating violent people to harass the families. Additionally, during the time period of this march, nearly 40 Baloch have been enforcedly disappeared from different regions of Balochistan, showcasing the disturbing conditions of human rights violation in Balochistan. About yesterday, 2 persons identified as Mr. Asan, son of Mr. Asif, and Mr. Jasum, son of Mr. Muhammad Baksh. According to the sources, Pakistani forces abducted these 2 young Baloch from Dazin Tump. On the other hand, today, early morning, 2 political activists, namely Muhammad Aslam Baloch, the chairman of Union Council Fazla, his son, and Rasul Bakhsh Baloch, were abducted from Taunsa Sharif at 8 a.m. and more than 25 persons have been illegally arrested from Taunsa. Including them is also Zulfikar Baloch, a member of HRCP. We are deeply worried about their well-being as they were abducted to intimidate the protesting demonstration in solidarity with us to be observed in Taunsa Sharif today. Despite facing hardship in the camp, including harsh weather conditions, limited resources, health issues, and the absence of proper sanitation facilities, we remain peaceful and resilient. We urge international journalists, researchers, and intellectuals to visit Islamabad, record our stories, and shed light on the situation in Balochistan. We emphasize the importance of understanding our pain and struggle, which extend beyond mere differences. Despite the order of High Court of Islamabad, we have still not received very basic facilities to survive in the sit-in camp. This is what this mighty machinery is threatening. More than 500 Baloch marchers in the camp. They are exposed to threat.
While the state machinery employs surveillance and harassment, our peaceful protests during the Baloch March contrast with the violence perpetrated by the death squad and state forces. The counter camp operating without surveillance cameras raises concerns about the safety of its inhabitants. We request to the HR organization and emphasizes of the civilized world, watch us. We appeal to international human rights representatives, ambassadors and journalists to urgently visit both camps, assess the disparities in surveillance and address the health and security concerns. The families in the Baloch Yekjehati Committee camps required immediate attention, including psychological counseling and support from international organizations. The surrounding internet blackout near the National Press Club compounds our urgency, and we implore the international community to intervene and help address our concerns. In the face of threats, harassment and ongoing media blackout and an internet shutdown, we seek solidarity from the global community to bring to light the realities of Balochistan and protect the lives of thousands of affected individuals. Your immediate attention and support can make a significant difference in our struggle for justice and human rights. Thank you. देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमारे इस स्ट्रगल को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पहले भी हमें थ्रेट किया गया है, हमारे जो है सेल फोन्स उनको ट्रैक किया गया है और इससे आज भी मेरा घर, जो मेरे गांव में मेरा घर है, वो वहाँ के डेथ स्क्वाड के कंट्रोल में है। मैं अपने घर में नहीं जा सकती। जब इन तमाम हरबों से ये कामयाब नहीं हुई है तो आखिर में जो कि एक लास्ट हरबा किसी औरत को पीछे हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन, और वही इन्होंने इस्तेमाल किया। और जहाँ तक एक तस्वीर की बात है, और आज तक जो है जिस तरीके से न सिर्फ मेरे पर्सनल पिक्चर्स को इन्होंने बगैर मेरे कंसेंट के वायरल किया है, बल्कि ये जो पिक्चर्स हैं ये कम्प्लीटली फोटोशॉप पिक्चर्स हैं। और जहाँ तक इनकी बात है तो जिस तरीके से ये अपने कैंप में मोबाइल से ये तस्वीरें दिखाकर हमारे रोल को, हमारे इस मिशन को वो जो है डिस्टर्ब और इसको जो है मुतनाज़ा करना चाह रहे थे। तो एक तस्वीर कल से भी वायरल हो रही है जहाँ पर आसिम जो है जमाल रिसानी आसिम मुनीर साहब के गोद में बैठे हैं। तो इसका मतलब है ये भी फिर एक हकीकत तस्वीर है, इसको भी फिर हम हकीकत मान लें। इस तरह अगर आपको कोई नजरियाती इख्तिलाफ है तो आप आए सामने बात कर लें। इस तरह जो है आप 4 कदम के रास्ते पर आप इस तरीके से किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करके आप किसी को इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। अगर वाकई में इनके साथ प्रूफ्स हैं तो वो आए, इस तरह सामने अपनी बात रखें। इस तरह जो है भगोड़ों की तरह पीछे मोबाइल्स का सहारा लेके, फोटोशॉप तस्वीरों का सहारा लेके, किसी औरत को उसके किरदार पर बात करने का सहारा लेके, वो इस तरीके के हरबों से हम कई सालों से हम फेस करते हुए आ रहे हैं। और अब भी हम इस तरीके के हरबों को देखकर हमें इस चीज में हम अपनी ताकत को मजीद ज्यादा देख रहे हैं कि हम ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि एक पूरा कम्युनिटी यहाँ पे लगा हुआ है हमें डिफेम करने के लिए, हमारे एहतजाज को काउंटर करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एहतजाज मजबूत है और ये इफेक्ट कर रही है यहाँ की स्टेट को, यहाँ के लोगों को। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आप लोग असेस करना चाहते हैं क्या थ्रेटनिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तौंसा से 10 अफराद को फिर से जबरी के तौर पर गुमशुदा किया गया है, जिनके नाम मैं लेना चाहूंगी। जफर, नईम, शकील, नसीब, कामरान, जावेद, जुल्फिकार, असलम, रसूल बख्श, रियाज, सद्दाम, शाहिद, ये सारे बुजदार इत्तेहाद और बलोच राज के मेंबरान हैं जो आज बलोच यकजहती कमेटी के कॉल पर होने वाले तौंसा के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले थे। लेकिन आज इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट पहले 25 थी इनकी तादाद और अभी इनकी तादाद 35 हो चुकी है। ये है सीरियसनेस स्टेट का। इस पुरअमन एहतजाजी तहरीक को क्लैश करने के लिए वो हर हद तक जा सकती है। हम गुजारिश करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, और पाकिस्तान में अगर कोई आज़ाद अदलिया है तो उसी से भी गुजारिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों का नोटिस ले और जो लोग
इस मूवमेंट के हमरा शरीक हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, उन सब की सिक्योरिटी कंसर्न्स को सॉल्व किया जाए, उन सब लोगों को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए, रिहा किया जाए। देखिए, हमें अफसोस होता है इसी बात पर, हम 12 कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को एक कॉलोनियल तर्ज पर डील किया जाता है, बलूचिस्तान में जारी जो नस्ल कुशी है उसको जस्टिफाई किया जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमें किस तरह उस पर डील करना चाहते हैं। हमारे पीछे बैठे हुए तमाम जो औरतें हैं, बच्चे हैं, इनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट विक्टिम्स हैं जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने इनके प्यारों को सालों से अपने कैद खानों में डाला हुआ है, एटलीस्ट उनको अपनी अदालतों में पेश करें। ये हक चाहते हैं आपसे कि अपनी अदालतों को इज्जत दे, अपने कानून को इज्जत दे, या तो फिर आप डिक्लेयर कर दे कि पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया का कानून आपने नाफिज किया है वो नाफिज है ही नहीं। और एक सियासत के अंदर दो दस्तूर है, एक वो दस्तूर है जो बलूचिस्तान पे इम्पोज किया गया है जहाँ सिर्फ लॉलेस है, जहाँ कत्ल गारत है, और एक वो दस्तूर है जो यहाँ इस्लामाबाद पे इम्पोज है। जी नहीं, हम आपके सामने हैं, यहाँ मीडिया भी मौजूद है। हम आज 48 डे है हमारी मूवमेंट का। बात करने का तरीका तो ये है कि वो लोग जो इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ FIRs हो रही है। अबडक्शंस 40 के करीब को अबडक्ट किया गया है, बच्चों को अबडक्ट कर रहे हैं ये लोग जो पीसफुल कारकुनान है, जो इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, उनको भी अबडक्ट किया जा रहा है, उनको भी किया जा रहा है। जाए देखें, मैं साफ साफ कहती हूँ इस मीडिया को, जाए देखें तौसा शरीफ में आपकी रियासती फोर्सेस क्या जबर डाल रहे हैं। वो लोग जो पीसफुली आपके इलेक्शन सीजन में हर जगह पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, वो प्रोटेस्ट इक्तिदार के लिए प्रोटेस्ट है, वो जलसे इस इक्तिदार के लिए। और एक तरफ बलोच अपनी जिंदगी जीने का हक आपसे मांग रहा है, आप उन लोगों को प्रोटेस्ट करने का इख्तियार नहीं देते हैं। वो लोग जो इस मुजाहरों में शरीक हो रहे हैं, 35 के करीब, आज के दिन 35 के करीब कारकुनान को अबडक्ट किया गया है। ये क्या जंगी जराइम नहीं है पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान पर कर रहे हैं? और फिर कहा जाता है कि बलूचिस्तान पर बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो जो है ना रियासती दहशतगर्दी का काउंटर करने के लिए। ये तमाम वाज़ेह सबूत है। हम यहाँ बैठे हैं, हम हर दिन रियासत को एक्सपोज करते रहेंगे। अगर रियासत तशद्दुद के साथ हमें डील करेगी, हम और ज्यादा मुतहम्मिल तरीके से बैठेंगे। हमारी जारी चौथी नस्ल है जो हम ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। आज आप सब लोग कैमरा लेकर खड़े हुए, हमने खामोशी से इन सबको देखा है। किसी कैमरे ने इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हमने बर्दाश्त किया है वो चीज जिसको रियासती जबर कहते हैं। रियासती वायलेंस की वजह से हमारे बच्चे बूढ़े कोई भी महफूज नहीं है। वो लोग जो इन औरतों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आज इकट्ठे हुए थे, आपने उन लोगों को भी गुमशुदा कर दिया है। वो फहरिस्त बढ़ती जा रही है, वो फहरिस्त जो आपने क्रिएट की है, ये वो संजीदगी हम चाहते हैं आप सब लोगों से, साथ ही हजरात से। अगर कोई हमें सुन रहा है तो काइंडली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज बने। शायद बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, उन घरों में वो जो रियासती जबर करते हैं, जब औरतों पर जबर करते हैं, जब इनके बच्चों को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम यहाँ बैठे आप लोगों के आसरे पर बैठे हैं ताकि आप पाकिस्तान की जंगी जराइम को एक्सपोज कर सके और बता सके दुनिया को कि पाकिस्तान बलोचों के साथ कौन सा रवैया इख्तियार कर रहा है। वो लोग जो पीसफुली यहाँ 48 डे से हम लोग रियासत से मुतालबा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई आओ हमारे मुतालबात के साथ डिबेट करो, लॉजिक के साथ डिबेट करो, अपनी अदालतों में इन लोगों को पेश करो। और इनका रवैया ये है कि और फहरिस्त बढ़ा दी है, फहरिस्त बढ़ती जा रही है, लोगों को गुमशुदा करते जा रहे हैं। इस बात पर डिबेट की जाए। दुनिया में अगर इंसानी हुकूक है, दुनिया में अगर कोई भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं और कोई भी अगर इंसानी हुकूक पर यकीन रखता है तो आए वो बात करे। क्या बलोच इंसान नहीं है? और ये रियासत जो बलोच के साथ कर रही है, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहता और आप सब लोग खामोशी से सुनते रहे?
दूसरी बात, आपने अक़वाम मुत्तहिदा ऑफिस के सामने भी एहतजाज देने के लिए देखिए, हमारा 48 दिन है और हमारे तीसरे फेज में हम इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, जिसमें पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो आवाम हमारे बयान ये के साथ है, जो उन मजलूम औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, हम उन सबसे गुजारिश करते हैं कि वो इस मूवमेंट का साथ दें। और इस दौरान हमारे ऊपर एक एक शख्स के ऊपर थ्रेटनिंग है, एक एक शख्स इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है, वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार हो सकता है, वो स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट थ्रेट में है। उसके खिलाफ आप सब लोग हमारी मूवमेंट का साथ दें। और हम यहाँ बैठे हैं, अगर सैनिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना, आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया। हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस है जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ डिबेट करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, उसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफी है। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन की जो बात की, कुछ दिन पहले वक्त की सूरत में हम लोग डीसी ऑफिस गए थे, बाकायदा वो हमने उनसे कहा कि हम आपसे इजाजत लेके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस तक जाएंगे, आप हमें इजाजत दे दें। उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाया कि इस तरह के आर्डर नहीं है आप लोग को, आप वहाँ नहीं जा सकते। हालांकि हमें उसी टाइम पता चला कि कश्मीर के हवाले से कोई रैली उन्होंने निकाली है और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने थे उस वक्त, तो हमने डीसी साहब ने हमें मगर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। फिर बाद में हमें कहा कि ये आप लोग को लाउड स्पीकर इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं है, कोई और कागज़ हमें दिखाया। फिर जब से हम साए आए हैं यहाँ से, हर 2 मिनट बाद ये ढोल की जब आवाज़ आती है तो मैं उनको वॉइस करता रहता हूँ कि हमारे फ़ोन बंद है, स्पीकर बंद है, लेकिन वहाँ से ढोल की आवाज़ें आ रही हैं, कल ये पाबंदी उन पे भी लगा दे। तो ये मुसलसल हमारे साथ एक किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तक ये तो कानूनी हक है हमारा ना, हम रैली तो कम से कम कर सकते हैं। हमने ये कहा कि आप हमें 5 मिनट के रैली की इजाज़त दे दें, हम थोड़ा रोड पे जाएंगे, वापस आएंगे। कहते हैं कि आप लोग को बाढ़ क्रॉस करने की भी इजाज़त नहीं है, ये हमें जवाब दिया गया। और आप सब लोग देख सकते हैं साथी हजरात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए हैं, और दूसरी जानिब जो कैंप है उसमें कोई कैमरा नहीं है। ये सर्विलेंस है, यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंडर रखा गया है। उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको घरों में हिरासा किया जा रहा है, और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज ए सहाफी, एज ए रिस्पॉन्सिबल सहाफी, आपको ये चीज मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुई है, उन सब की जिंदगी खतरे में है। वो सब कंटिन्यूसली थ्रेट किए जा रहे हैं, वो सब कंटिन्यूसली प्रोफाइलिंग के निशाने में है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो सहाफी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहे हैं, आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा ही नहीं। देखिए जी, आपने अभी जो इससे पहले एक तस्वीर की बात की समी बेटी के हवाले से, मुझ जैसा सादा बंदा कोरल ड्रा, फोटोशॉप और फ्री हैंड पे काम कर सकता है। एक सादा बंदा, आप कंप्यूटर रख दे मेरे सामने, मैं कर सकता हूँ। आपकी फोटो ऐसे एडिट करूँगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इनके बाकायदा वीडियोज आए हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं, बाकायदा वीडियोज में गोलियां मार के लोगों को उन्होंने, एसी साहब उस दिन अगर खड़े थे, मैंने उनको कहा कि जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि आप उनको डेथ स्क्वाड कहते हैं, सामने इशारे करके मैंने लोग दिखाए कि वो जो सामने बंदा खड़ा है, वीडियो उसके मौजूद है, जो सामने बंदे को गोलियां मार के फखरिया और बाजारों में घूम के कहते हैं कि हमने पिलाने को मार दिया। हम तो बलूचिस्तान के ना, हमारे को जानते हैं, वो भी हमेशा जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, एक एक फर्द को हम लोग जानते हैं। तो ये कोई इल्जाम नहीं है।
ये गुज़िश्ता 20 सालों से जो डेथ स्क्वाड का हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ मौजूद तो है ना। ये इनके कहाँ पे है ये बच्चे सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने घरों से उठाए हैं, सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने से उठाए हैं ना। हम सबको जानते हैं, नाम जानते हैं, वालिद का नाम जानते हैं, उनके दादे का नाम जानते हैं। मीडिया के सामने पुकारना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम बाकायदा जानते हैं। अब कोई भी सबूत हमसे मांगे हम आपको दे सकते हैं। अगला लाएमल भी है, आपकी मूवमेंट किस साइड पे जाएगी, या फिर आपने वही करना है कि थ्रू पाकिस्तान में मूवमेंट चलाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ पे बैठे रहे। देखिए फर्क तो पड़ेगा, फर्क हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। हम यहाँ पे बैठकर हर दिन रियासती जबर को एक्सपोज करेंगे। यहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसको हर दिन बताएंगे। हम उन सब की आवाज है, सिंधी मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, पश्तून मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, हम उन सब की आवाज है। अगर रियासत हर दिन हमें मार मार कर तकती नहीं है ना, तो हर दिन इस सर्दी में भी हम बैठकर उसको दिखाएंगे कि हमारा आज़म भी मजबूत है, अवामी ताकत भी सबसे बड़ी ताकत है। और स्टेट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते, स्टेट की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो अवाम है, अवाम है। और वो अवाम जिसको 75 साल से दबाया गया, वो अवाम जो कुछ फौजी कर्नलों ने कुछ पॉलिसियां बनाने, कत्ल और गारत की पॉलिसी और लूटने की पॉलिसी, उस लूटने की पॉलिसी के खिलाफ बलोच ये जद्दोजहद ला रहा है। और पूरे पाकिस्तान की मजलूम आवाम से हम ये मुतालबा करते हैं, ये अपील करते हैं कि अब आपको भी खड़ा होना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए खड़े हो जाए, ताकि हमारी हम आवाज अगर नहीं बनना चाहते मसला नहीं है, लेकिन अपने लिए खड़े हो जाए। ये वक्त अभी आ गया, यहाँ से अगर हम उठकर जाएंगे भी तो ये लोग कभी बदलने वाले नहीं है। इसका जवाब ये है कि 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट के दौरान, 10 मिनट ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग तोसा से इन्होंने उठाए। ये जंग नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। इस तरह डील करते और फिर बोलते इंटरनल इशू है। कौन थे वो लोग जो मासूम लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, या डिक्लेयर करो कि देयर इज अ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। आए जवाब दे, अपने फोर्सेज की करतूतों को ऑन करे। क्या आपके फोर्सेज मासूम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है, हर औरत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में चापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ इक्तिदार की बात होती है, सिर्फ वसाइल की लूटने की बात होती है। जेन्युइन इश्यूज पर आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की है। हमसे बार बार कहा जा रहा है हमारा अगला लाए क्या है, हमारा अगला लाए हमारे स्टेट पर डिपेंड करता है। हमारे साथ पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से, पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं है। एक पूरी कौम है जिसको आप नस्ल कशी कर रहे हो, एक पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो, और बदले में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम खामोशी से मारे? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की तारीख से नावाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, उस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। पता नहीं है क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है? ये वो लोग हैं जिनके कपड़े बल के फटे हुए हैं, लेकिन इनके जज्बे, इनका शऊर आपके पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एजुकेटेड तबके से सबसे ज्यादा ऊपर है। इसका मुकाबला आप कभी कर भी नहीं सकते हो। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मीडिया से मुराद वो मीडिया नहीं है जो हमें कवरेज दे रही है। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ, और मुझे पता है जो शख्स हमारी तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी थ्रेट किया जा रहा है। और आने वाले वक्तों में मीडिया के वो सार्फिन वो सबसे पहले प्राइम टारगेट हो सकते हैं स्टेट के, और उसकी भी हमने बात की है, उसकी भी तशवीश हमने जाहिर की है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को, जिबरी गुमशुदा अफराद को हमारे मुतालबात पर बात करने से पहले सबसे पहले
एंड इन्फोर्स डिसअपेयरेंस के बिल को लेकर आए, उसको कबूल करवाए। इस 48 दिन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है, 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है। उनका काम नहीं है कि वो कानून को नाफिज करे। आज सिर्फ 53 से 38 से ज्यादा अफराद जिबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस पर जरूरी है कि हम वहां जाए? ये क्या बात होगी कि आप हमारे पास आए? हम आए तो हैं, यहाँ बैठे तो हैं 48 दिनों से, और कहाँ आए हम? आपके लोग हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे। आपके लोगों ने चारों तरफ से कैमरे लगाए हुए हैं। थैंक यू।